آپ کا سوال ہے کہ حال ہی میں نے جہاد کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ جہاد کا اصل معنی کوشش کرنا یا جدوجہد کرنا ہے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے قرآن مجید اور احادیث سے ثابت بھی کیا ہے کہ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب اپنے اندر کے برے خیالات کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے، اب جا کر اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں ملے وہیں قتل کر دو، اور ہم جانتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہے غیر مسلم۔ یہاں بھی تو قرآن غیر مسلم کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سوال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال بالکل مناسب ہے، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے یہ سوال کیا ہے، اور ترجمہ میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں کہیں پر بھی ملے ان کو قتل کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ کافر کا مطلب غیر مسلم ہے، آپ کا یہ خیال بالکل درست نہیں، اور اس کا ذمہ دار آپ نہیں بلکہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ تو کر لیا لیکن کئی جگہوں پر نامکمل ترجمہ کیا ہے۔ کئی جگہوں پر ترجمہ میں بھی عربی لفظ کا ترجمہ نہ کر کے اس عربی لفظ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو چکا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کافر ایک عربی لفظ ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کافر جو عربی لفظ ہے اس کا بھی تو ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن ہم نے لفظ کافر کا ترجمہ نہ کر کے ترجمہ میں بھی لفظ کافر کو اسی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، لفظ کافر کا لغوی معنی انکار کرنے والا ہے، اور اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا یہ معنی ہے کہ سچائی کا انکار کرنے والا، اور انکار کرنے والوں کا یہ گروہ ہر زمانے میں تھا اور آگے بھی رہے گا۔ جو بھی سچائی کو انکار کرے گا عربی زبان میں وہ کافر کہلائے گا۔ جنہوں نے شری کرشن جی مہاراج کا انکار کر کے ان کا مخالفت کیا تھا، عربی زبان میں ان کو بھی کافر یعنی انکار کرنے والا کہا گیا ہے۔ راون اور راون کے ہم خیال لوگ جو شری رام چندر جی کا انکار کر کے ان کا مخالفت کیا تھا، عربی زبان میں ان کو بھی اس زمانے کا کافر یعنی انکار کرنے والا کہا گیا ہے۔ نمرود یا نمرود کے ہم خیال لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کر کے ان کا مخالفت کیا تھا، عربی زبان میں ان کو بھی اس زمانے کا کافر یعنی انکار کرنے والا کہا گیا ہے۔ فرعون اور فرعون کے ہم خیال لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے ان کا مخالفت کیا تھا، عربی زبان میں ان کو بھی اس زمانے کا کافر یعنی انکار کرنے والا کہا گیا ہے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے ان کا مخالفت کر کے ان کو سولی پر چڑھایا تھا، عربی زبان میں ان کو بھی اس زمانے کا کافر یعنی انکار کرنے والا کہا گیا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، جنہوں نے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ان کا مخالفت کیا تھا، عربی زبان میں ان کو بھی اس زمانے کا کافر یعنی انکار کرنے والا کہا گیا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں آنے والی سچائی کا انکار کرتے آئے ہیں، لہٰذا عربی زبان میں ان کو کافر کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ لیکن جب ہم ہندی یا اردو زبان میں بات کریں گے تو ان کو ہم کافر نہ کہہ کر انکار کرنے والا کہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم عربی زبان میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اردو یا ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ جب ہم اردو یا ہندی زبان میں بات کریں گے تو اس میں عربی کا لفظ کیوں استعمال کریں گے؟ کافر ایک عربی لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے انکار کرنے والا، یہی جملہ ہم استعمال کریں گے۔ لہٰذا قرآن مجید کے ترجمہ میں جہاں کہیں بھی کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر آپ کافر کی جگہ انکار کرنے والا استعمال کر کے دیکھیے، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب ایک اہم سوال رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ لفظ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اور اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ان کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ملے
उनको कत्ल कर दो। देखिए, आप जिस आयत की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है सूरा अल बकरा के आयत नंबर 191, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम। यानी वो तुम्हें जहां कहीं भी मिले, तुम उनके साथ जंग करो, उनको वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से भी ज्यादा नुकसानदेह है। और मस्जिद हराम के पास तब तक उनके साथ जंग ना करो जब तक वो तुम्हारे साथ जंग ना करे। अगर वो तुम्हारे साथ जंग करे तो तुम भी उनके साथ जंग करो। कभी आपने सोचा है कि यह हुक्म किस किस्म के लोगों के खिलाफ था और यह हुक्म किस वक्त दिया गया था? आप इस आयत के पहले के 2 आयत और इस आयत के बाद के 2 आयत पढ़कर देखिए, आपको अपने सवाल का जवाब फौरी तौर पर मिल जाएगा। यह हुक्म मैदान जंग के लिए है। यह हुक्म दौरान जंग आतताई यानी बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाले जालिमों के खिलाफ दिया गया है। आतताई यानी बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ जंग करने की वजह भी अल्लाह ताला ने सूरा अल हज के 40 नंबर आयत में बता दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, उदिन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, यानी उनको इसलिए जंग करने की इजाजत दी गई है क्योंकि उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है। और इन जालिमों के खिलाफ हर मजहब के मजहबी किताब में जंग करने की इजाजत दी गई है। आइए अब हम देखते हैं कि हिंदू मजहब के मजहबी किताब इस बारे में क्या कहती है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 36 में लिखा हुआ है कि निहत्य धातराष्ट्रान्ना का प्रीति स्या जनार्दना पापम व्याश्रयदस्मान हत्वा एतानातताइन। यानी अर्जुन कहता है कि ए जनार्दन यानी ए कृष्ण, धृतराष्ट्र के बेटों को कत्ल करके किस तरह हमें खुशी मिल सकती है? इन आतताई यानी इन जालिमों को कत्ल करने से हमें ही तो गुनाह होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये आतताई यानी ये जालिम कौन लोग हैं? मनुस्मृति के 3 नंबर अध्याय के 19 नंबर श्लोक में आतताई के बारे में लिखा है कि 6 किस्म के लोग आतताई में शामिल हैं। मनुस्मृति के 3 नंबर अध्याय के 19 नंबर श्लोक में लिखा है कि अग्निदो गदर्वेश्य शास्त्र पाणी धनार्प क्षेत्रधर अपहरता च षडेत आतताईना। आग लगाने वाला, जहर देकर लोगों को मारने वाला, हाथ में असला लेकर दूसरों को मारने की कोशिश करने वाला, मालो दौलत को छीनने वाला, बेगुनाह लोगों का जमीन कब्जा करने वाला और दूसरों की बीवी को भगा कर ले जाने वाला, ये 6 किस्म के लोग आतताई में शामिल हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि इन आतताइयों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद ने तो कह दिया है कि जंग के मैदान में आतताई जहां पर भी मिले उनको कत्ल कर दो। अब देखते हैं कि हिंदू मजहब की मजहबी किताब इस ताल्लुक से क्या कहती है। मनुस्मृति के 8 नंबर अध्याय के 350 नंबर श्लोक में लिखा है कि आततायनम आयांतम हन्यादेवा विचारयम न आतताई वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। यानी किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से आने वाले आतताई को बगैर सोच विचार के कत्ल कर देना चाहिए। आतताइयों को कत्ल करने वालों का कोई गुनाह नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अर्जुन बार बार कह रहे थे कि मेरे सामने जो लोग हमारे साथ जंग करने के लिए आए हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लिहाजा मैं उनके खिलाफ जंग नहीं कर सकता, ये कहकर उन्होंने तीर और कमान को जंग के मैदान में रखकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। देखिए, तब श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को क्या कहा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में लिखा है, क्लेबयं मा समागमा पार्थ नेतत्यजु पपद्यते शूद्रं हृदय दुर्बलं तत्तुतिष्ठ परंतप। यानी ए अर्जुन, नामर्दगी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये जेब नहीं देता। ए अर्जुन,
ज़हनी कमज़ोरियों को पसे-पूश डालकर जंग के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 37 में लिखा है, हतो बप्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा बभोक्ष्यसि महीम् तस्मादु इत्थश्च कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यानी ए अर्जुन, अगर तुम जंग के मैदान में मर भी जाओगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, और अगर तुम फतह पा लोगे तो दुनियावी लिहाज से उस इलाके का हाकिम बन जाओगे। लिहाजा ए अर्जुन, उठो और जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब आप ही बताइए कि बानी इस्लाम और कुरान मजीद अगर दिफाई जंग का इजाजत देते हैं, और अगर जंग के मैदान में आतताइयों को यानी जालिमों को कत्ल करने की इजाजत देते हैं, उसमें ऐतराज करने वाली कौन सी बात है। श्री किशन जी महाराज ने भी तो दिफाई जंग की इजाजत दी हुई है। सिर्फ इजाजत ही नहीं दी, बल्कि बिल्कुल उसी तरह हौसला अफजाई की है जिस तरह बानी इस्लाम जंग के मैदान में हौसला अफजाई फरमाया करते थे। और कुरान मजीद में जहां कहीं भी इस तरह का हुक्म दिया गया है, उस आयत के पहले के 10 आयत और उस आयत के बाद के 10 आयत आप पढ़कर देख लीजिएगा कि यह हुक्म किन लोगों के खिलाफ दी गई है और किस मौका पर दी गई है। तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा कि इस तरह का हुक्म वाली हर आयत जंग के मैदान में नाजिल हुई थी, और इस तरह के हुक्म भी इन आतताइयों यानी जालिमों के खिलाफ दी गई है, जिन जालिमों के बारे में हिंदू मजहब के मजहबी किताब कहती है कि उनके कातिलों का कोई गुनाह नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह इन जालिमों का या इन आतताइयों का या तो जिंदगी भर जेल की सजा होती है या फिर उनको फांसी की सजा होती है। ये तालीम और ये हुक्म सिर्फ इस्लाम और हिंदू मजहब में ही नहीं, बल्कि हर मजहब में, हर मजहबी किताब में इस किस्म की तालीम पाई जाती है। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जहां दलाइल और सबूत के साथ साबित करेंगे कि हर मजहब की बुनियादी तालीम एक जैसी है। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लें कि यह हुक्म सिर्फ और सिर्फ जंग के मैदान और आतताई यानी जालिमों के खिलाफ दी गई है। उसके अलावा अगर कोई बिला वजह बेगुनाह लोगों का कत्ल करता है, उसके लिए अल्लाह ताला सूरतुल माइदा के आयत नंबर 32 में फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। यानी जिसने किसी जान के बदले या जमीन में फिसाद फैलाने के बदले के अलावा किसी शख्स को कत्ल किया, तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया है। और जिसने किसी एक जान को कत्ल से बचाकर जिंदा रखा, उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदा रखा। असल में अगर कुरान मजीद का सही रंग में तर्जुमा और तफसीर की जाए तो कोई भी कुरान मजीद पर एतराज नहीं कर सकता। सिर्फ कुरान ही नहीं, बल्कि किसी भी मजहबी किताब पर एतराज नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इन पाकिज़ा मजहबी किताबों का सही तर्जुमा और सही तफसीर न करके दूसरों को इन मजहबी किताबों पर एतराज करने का मौका फराहम कर रहे हैं। हम अवामुन नास तक सही मजहबी तालीमात पहुंचाने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अवामुन नास के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपके जहन में अगर कोई सवाल पैदा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम ज़रूर उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।